Hello, this is Sarthak Srivastav. You are watching Insights. Now it's time for Insight of Life Sciences, where you will get to learn about content regarding NET examination, ICMR examination, DBT examination, GATE examination, NEET examination. Plus, this content will help you in your MSc and BSc classes and 12th and 11th biology courses also. It will be our effort to bring quality content to you with simplest tricks. We hope for your support. So now let's start the video. Today in this part of video we will discuss about the properties of amino acids. As amino acid one of the most important biomolecules, we are starting with it. And in this first part, we will deal with the properties of amino acid. So let's start. So as you are seeing, the term amino acid, if you break this term amino plus acid, it comes like amino plus acid. So anything that is having an amino group and an carboxylic group is called the amino acid. You can see there is an amino group and there is a carboxylic group. Now it is also the building blocks of protein. Mean it is the monomer that forms the protein. It can be like it is the making brick or the single brick that forms the entire house. आप कह सकते हैं ये ईंटें जैसे मिलके घर बन रहे हैं, वैसे it is the building block of the protein, that smallest unit that individually combined with few simpler other form of same units and then form an entire house, like same several amino acid combines and forms an protein. It is like that. Now if you can see what they contain, what amino acid contain, it contain an amino group, it contain an amino group, इनके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इनके पास एक हाइड्रोजन एटम होता है और साथ साथ इनके पास एक डिस्टिंक्टिव साइड चेन. दे कंटेन एन distinctive side chain. Now the term distinctive, what is the difference between the term distinctive, why it is like distinctive? So because ये जो टर्म डिस्टिंक्टिव है इसका मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक, यू कैन से दैट स्पेसिफिक साइड चेन दैट कीप ऑन चेंजिंग विद डिफरेंट अमाइनो एसिड. इसी की वजह से डिस्टिंक्टिवनेस आता, मतलब एक स्पेसिफिसिटी आती है कि हाँ ये वाला ये अमाइनो एसिड है, दूसरा कोई आएगा तो उसमें किसी और तरीके का साइड चेन होगा, किसी में खाली एक CH3 लगा होगा, किसी में कोई एरोमेटिक साइड चेन होगा. तो इस हिसाब से जो डिफरेंस होता है वो इसी साइड चेन के हिसाब से होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्टिंक्टिव साइड चेन. तो अगर इस साइड का एक क्विक रिकैप देखते हैं इस स्लाइड का, तो हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड क्या है. अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है. इसमें एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एटम है और एक डिस्टिंक्टिव साइड चेन है जो कीप ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. So there is a term called alpha amino acid. Now let's see what is alpha amino acid. So whenever the carboxylic group, here you are saying the carboxylic group, when the carboxylic group, the amino group is bounded to the same carbon, then it is called the alpha amino acid. So and when that carbon is the alpha carbon, because दैट कार्बन विच इज़ बाइंडेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बाइंडेड है वो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए उससे बाउंडेड जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है और उसी से अमाइनो ग्रुप भी बाइंडेड है, इसलिए ये इसको अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहते हैं. तो अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में समझना चाहें तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड एक ऐसा अमाइनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही अल्फ़ा कार्बन से बाउंड हैं
और अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है जिससे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बाउंड है, और इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए ये अल्फा अमाइनो एसिड कहलाता है। अब बात आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक कंपाउंड की क्या होती है? तो पहली चीज़ हमें ये जाननी चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जिस जिस के पास रहेगी वो क्या कहते, उनके पास कायरल कार्बन रहेगा और वो कायरलिटी शो करेंगे। तो सबसे पहला, द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन योर माइंड इज दैट व्हाट इज कायरलिटी और व्हाट इज कायरल कार्बन। So the answer is that any carbon, as we all know that carbon has 4 valencies, and when all the four valencies of the carbon is satisfied by 4 different groups, then it is said to be the chiral carbon, and this property is called chirality. So once again I will repeat that कि वो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हैं उन्हें कायरल कार्बन कहेंगे, और ऐसी प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहेंगे। अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो यहाँ पे अगर आप ये एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक तरफ तो इसकी एक वैलेंसी अमाइनो ग्रुप से सेटिस्फाइड है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एक हाइड्रोजन से, एक दूसरे साइड चेन से, तो इसलिए अमाइनो एसिड कायरलिटी शो करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है ग्लाइसिन का। ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन सो कायरलिटी। अब यहाँ होता क्या है, देखिए अभी हमने कायरलिटी का कंडीशन जो देखा है उसके हिसाब से कि चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हों, लेकिन ग्लाइसिन में एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ अमाइन ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, इसके साइड चेन में भी खाली हाइड्रोजन है। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ये, और ये कायरलिटी को नहीं फॉलो करती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, और हमेशा एक्सेप्शंस को ध्यान में रखिएगा, हमेशा एक्सेप्शंस को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि कायरलिटी, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे वो कायरलिटी शो करेंगे। अब चलिए हमने इतनी चीज़ जान ली कि कायरलिटी क्या होती है, और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो कायरलिटी शो करेंगे, या जो कंपाउंड कायरलिटी शो करेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन अब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो वो क्या करेंगे? तो जो अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे, वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे। अब होता क्या है, जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट मीन्स एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन रोटेट द प्लेन ऑफ ए पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। मीन्स इफ यू आर हैविंग एन optical compound and when you pass a plane polarized light through it, its plane will be rotated either clockwise or counterclockwise, and according to the rotation, that if it is clockwise, अगर वो क्लॉकवाइज है रोटेशन या काउंटर क्लॉकवाइज है, उसके हिसाब से उस कंपाउंड को एक नाम पहले उसको एक नाम डेजिग्नेट करते हैं। तो देखते हैं क्या नाम डेजिग्नेट करते हैं। तो इफ द पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टू क्लॉकवाइज, अगर आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है कंपाउंड से पास होने के बाद क्लॉकवाइज, उसका जो प्लेन है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो जा रहा है तो उसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले एक प्लेन पोलराइज लाइट के लिए हम फिल्टर से पास कराते तो लाइट प्लेन पोलराइज लाइट हो जा रही है। यहाँ पे पोलरीमीटर है, आप यहाँ पे एक सैंपल भी रख सकते हैं, और यहाँ से जब लाइट पास हो रही है तो वो डिविएशन हो रहा है एंगल में। तो देखिए अगर क्लॉकवाइज डिविएशन है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो लीवो रोटेटरी है। अब अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो बाय कन्वेंशन स्मॉल डी या प्लस का सिंबल यूज करेंगे, अगर लीवो रोटेटरी है तो स्मॉल एल या माइनस का सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है कि स्मॉल डी स्मॉल एल पे स्ट्रेस करिएगा और क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज पे करिएगा। अब अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट है और ये जब सैंपल से पास हो रहा है, उसके बाद अगर ये यहाँ पे प्लेन और ये एंगल ऐसे कहीं पे जा रहा है तो ये हो जाती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर यहाँ पे ये
इस तरफ एंगल चला जा रहा है तो ये हो जाती है लीवोरेटरी। ये आपका प्लेन था, इसके इधर या इधर, जिधर क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, इससे हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे चलते देखते हैं। अब बात आती है ऑप्टिकल रोटेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइक concentration of the compound. Just make an simple setup here, like there is a unpolarized light, and there is an unpolarized light. Now it is a filter, the light become plane polarized, it passed through the sample, and now you can see, you measure the deviation here, either this side or this side. Now you can see, first of all, what are the factor on which it depend. Here the sample is filled in something like, okay, now let's see, it is a rough diagram, okay. Now let's see, first of all, concentration of the compound. So आपके सैंपल जहाँ से आप पास करा रहे हो उसमें आपके ऑप्टिकल कंपाउंड का क्या कंसंट्रेशन है, इस पे ऑप्टिकल रोटेशन सबसे पहले डिपेंड करेगा, क्या कंसंट्रेशन है। दूसरा, इस सैंपल का क्या टेम्परेचर है, इस पे डिपेंड करेगा। तीसरा, ये जो लाइट आ रही है इसकी वेवलेंथ क्या है, लाइट की वेवलेंथ क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। चौथा, सॉल्वेंट यूज टू डिजॉल्व द सैंपल, यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है डिजॉल्व करने के लिए सैंपल को, उस पर डिपेंड करेगा। और लास्ट, किस पे डिपेंड कर रहा है, जो पाथ लेंथ ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक का इसका जो पाथ लेंथ है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा आपका ऑप्टिकल रोटेशन। अब बात आती है इनैंशियोमर्स की। इनैंशियोमर क्या है, तो कभी भी जो कायरल कार्बन पसेस कर रहे होंगे, कोई भी कंपाउंड जो कायरलिटी शो कर रहे होंगे, अगर आप वो हमेशा दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करेंगे। सिंपल है, अगर आप एक कायरल कंपाउंड है उसका मिरर इमेज लीजिए तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और इसी नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म को कहते हैं इनैंशियोमर, या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स भी इनको कहते हैं। अगर हम इन रीड आउट करें तो एन अमाइनो एसिड विद अ कायरल कार्बन कैन एग्जिस्ट इन टू कॉन्फ़िगरेशन दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब कि एक है उसी का मिरर इमेज है और दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, दे कैन नॉट बी केप्ट ऑन सेम, लाइक दे कैन नॉट, लाइक व्हेन यू होल्ड योर हैंड्स it can't be like that. So ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स भी इन्हें कहते हैं, इनैंशियोमर कहते हैं। ये क्या है, एक कायरलिटी शो करने वाले कंपाउंड उसी का मिरर इमेज बन जाए और वो दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, इन्हीं को क्या कहते हैं, इनैंशियोमर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो बहुत इसमें भी बात क्लियर है कि ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन एग्जिस्ट इन दीज टू डिफरेंट इनैंशियोमेरिक फॉर्म। सो पहले हमने देख लिया था कि ग्लाइसिन is the exception for chirality. It is the only amino acid that doesn't possess any chiral carbon. So if it not possess chiral carbon, it does not have any optical activity, and when it is not having optical activity, then it can't also form enantiomer. It is as simple as this. अगर हम देखें कि हमने पहले ही देख लिया था कि ग्लाइसिन जो है वो कायरलिटी नहीं शो करेगा, उसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसीलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और जब कायरल कार्बन नहीं है तो उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बन सकता, इसीलिए वो उसके पास इनैंशियोमेरिक फॉर्म भी नहीं होता है। और अगर हम देखें इसमें ट्रिक क्या है लर्न करने की, एक बात आप लोगों को यहाँ यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट कैपिटल एल और कैपिटल डी की बात हुई है, कैपिटल एल और कैपिटल डी आइसोमर्स की बात हुई। हमने इसके पहले हमने वहाँ भी कहा था, आप स्ट्रेस करिएगा स्मॉल एल स्मॉल डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के लिए। यहाँ क्या है, कैपिटल एल और कैपिटल डी की बात हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि ये जो है इसमें जब आपका टू रिमेंबर यू कैन से दैट व्हेन द अमाइन ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट साइड, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड है तो एल फॉर्म है, एंड व्हेन इट इज ऑन द राइट साइड it is the D form. It is as simple as this. Like you have to just remember कि देखना अमाइन ग्रुप किस तरफ है, अगर वो राइट साइड है तो D हो जाएगा, और लेफ्ट है तो उसी से रिलेट कर लीजिए L हो जाएगा। लेफ्ट याद कर लेंगे L तो राइट वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। there is one more key point, that is that all the amino acid which is ribosomically incorporated, that means they are translated or they are proteogenic, means वो सारे अमाइनो एसिड जो आपके प्रोटीन में ट्रांसलेशन के
थ्रू इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, दे आर बीन गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर सिस्टम बाय ट्रांसलेशन राइबोसोमिकली, मींस ट्रांसलेशन इज परफॉर्म बाय राइबोसोम, सो दे ऑल एग्जिबिट एल कॉन्फ़िगरेशन। उनके पास क्या होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। डी कॉन्फ़िगरेशन वाले डायरेक्टली नहीं आपके प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, अगर होंगे भी तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के थ्रू होंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे जो नॉर्मल जितने भी स्टैंडर्ड होंगे वो आपके एल फॉर्म में होंगे और वो प्रोटियोजेनिक होंगे और राइबोसोम से आपके ट्रांसलेशन प्रोसेस थ्रू इनकॉर्पोरेट होंगे। दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट this point, that it is L configuration. This is due to the L configuration that exists in the proteins. Now it is like absorption of UV radiation by aromatic amino acid. Not all amino acids show the absorption property in UV spectra, but amino acid having aromatic side chains show this property. So aromatic amino acid absorb UV light, and this is because that their aromatic side chain have pi bond localization and it is responsive for the absorption. Now there is a graph. First just see this table. Like we are having phenylalanine which is having its absorption maximized to at 257 nanometer. Now you can see near about 257 phenylalanine is having the absorption at 257, near about 257, you can see near 257 or exactly 257. Now if you see tyrosine, it is near about 274, and it is tryptophan, that is most nearly to 280. So this absorption maxima is to be kept into mind. Maximum is of tryptophan and phenylalanine at 257 and tyrosine at 274. But generally we take the absorption of any protein sample at 280 nanometer to use for detection and quantification of the purified protein. So हम कितने पे लेते हैं, 280 नैनोमीटर पे absorbance लेते हैं प्रोटीन सैंपल्स का, वहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम absorbance मिलता है। ये बात हो गई absorption की। Now just we will have a quick recap of entire, we will have the quick recap of entire. So we started with what is amino acid. Amino plus acid, break it and you will get amino acid. They contain what? They contain an amino group, a carboxylic group, and hydrogen atom, and a distinctive side chain. This side chain is distinctive because it keep on changing with different amino acid, and this is responsible for the specificity. Now moving forward, what is alpha carbon? Alpha carbon is that carbon that is bounded to the primary functional group, and here the primary functional group is the carboxylic group, and when the carboxylic group and the amine group are binded together, then it form the alpha carbon, alpha amino acid. Now moving forward, just optical activity. So any compound that is having chiral center and they are showing chirality is optically active. And what is chirality? Chirality is that property when the all four valencies of the carbon is satisfied by different group, and glycine is exception. Glycine doesn't have doesn't show chirality because it is the simplest amino acid, and two of the valencies are satisfied by hydrogen, that you can see here. Now optical rotation, when the compound is optically active, it will rotate the plane of a polarized light either clockwise or counterclockwise. If it rotates clockwise, then it is dextrorotatory, and by convention small d or plus symbol will be used, and if it is it rotate counterclockwise, then it is levorotatory, and small l and minus symbol will be used by convention. Now factor that affects the optical rotation is the concentration of the compound. Very simple, how much concentration is in the sample of that optical active compound, what is the temperature of the sample, wavelength of the light is used, and the solvent which is used to dissolve the sample, and finally what is the path length of the light. Now talking about enantiomer is like any amino acid which is having a chiral center, it will form an exist in two configuration, and the both configuration वो कैसे होंगे, वो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, और जब मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। इसमें भी कौन सा एक्सेप्शन है? ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन होता नहीं, इसलिए वो डी और एल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगे। हमें क्या याद रखना है? कैपिटल एल और कैपिटल डी फॉर्म, वहाँ स्मॉल डी, इसमें यहाँ कैपिटल एल कैपिटल डी, और कैपिटल एल क्यों? जबकि लेफ्ट साइड पे अमाइन ग्रुप रहेगा तो कैपिटल एल फॉर्म रहेगा, और जब राइट साइड पे रहेगा तो कैपिटल डी फॉर्म रहेगा। एक
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी आपके अमाइनो एसिड जो कि ट्रांसलेशन के थ्रू आपके सिस्टम में ऐड होंगे वो सब हमेशा एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी रेडिएशन की आएगी तो सारे अमाइनो एसिड नहीं करेंगे, खाली एरोमेटिक अमाइनो एसिड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन होता है और इसकी वजह से वो करते हैं एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और इसमें हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना होता है डिफरेंट डिफरेंट का, और पर हमें हमेशा प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन लेते हैं वो 280 नैनोमीटर पे लेंगे। अब फाइनली द वीडियो कम्स टू एन एंड। वी विल रिक्वेस्ट for your support. Please like our video, subscribe the channel, and please share. And your reviews and your suggestions are always invited. Please kindly know inform us about how you felt about this video in the comment section, please. Thank you for watching.